student, you are welcome in our SSC class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 3, इलेक्टोरल पार्टीज। इलेक्टोरल पार्टीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ रहे थे। अवर कॉन्स्टिट्यूशन entirely the citizen of the elect their representative to be the elected as a representative, मतलब जो जनता जो है अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको सेलेक्ट कर लेती है। and to be the elected as a representative the constituency makers however they were worried about the open election competition and certain weaker section may not be the stand to be the good changes to get the elected to Lok Sabha and the state legislative assemblies. They may not have to the required the resources and education to the content to win the election against the other, and those who were the influences is the resourceful may the prevent the from the winning election. If that happened, our parliament and the assemblies would be the deprived for their voice of the significant and section of our population. They would make their democracy less representative and the less democratic. So the makers of our constituency through the special system of reserve the constituencies for the weaker section and some the constituencies reserved for their people who belong to the शेड्यूल कास्ट, मतलब जो एससी से बिलोंग करते हैं, जो एसटी मतलब कि शेड्यूल ट्राइबल से बिलोंग करते हैं। इन एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी only the someone who belong to the schedule the caste stand for the election and similarly in those that belong to the scheduled tribal, चाहे वो एससी से हो या एससी से हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, and the elected from the constituency reserved for the एससी, मतलब कि उनकी जो सीट्स है वो क्या है कि रिजर्व कर दी जाती हैं। and the Lok Sabha 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribal on the 26 January 2019, मतलब ये इतने समय कर दिया गया है। the numbers of the proportion to be the share the total population this is reserve seat for the SC, मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी जो एससी वालों की जो सीट है उसको रिजर्व कर दिया गया है और एससी वालों की जो सीट है उसको भी रिजर्व कर दिया गया है। and the reserve for the ST and do not take away the legitimate and the share any other local group, and this system of the reservation was the extended later to the other weaker section as the district and the local level in many states the seat ruler panchayat and the urban municipalities and the corporation local bodies are now the reserve for their other backward classes, मतलब ओबीसी के लिए भी रिजर्व कर दी गई है। in the proportion seat reserve the variety of the state and similarly 1/3 of the seats are reserved for the rural and the urban local bodies for the women candidate, मतलब वुमेन कैंडिडेट के लिए भी कुछ रिजर्वेशन कुछ रिजर्व रख दी गई है सीट को। अब हम देखेंगे वोटर लिस्ट के बारे में। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो जब इलेक्शन होते हैं तो जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी ड्यूटी लगा दी जाती है और उनको जो ड्यूटी है वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ करनी पड़ती है, अदरवाइज़ तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं, हर व्यक्ति को जो वोट डालने का अधिकार जो प्राप्त हुआ है वो अधिकार के तहत सभी वोट डालते हैं। उसमें ये फिक्स रहता है कि जो जिस जगह का रहने वाला है, जैसे मान लो कोई भोपाल में रह रहा हो और उसका वोटर आईडी हो या फिर वो यदि पहले मान लो वार्ड नंबर 32 में होशंगाबाद में रहता था तो उसका नाम वहीं पर आएगा, मतलब होशंगाबाद में ही आएगा, तो वो वहाँ भोपाल में वोट नहीं डाल सकता है, क्योंकि उसके लिए उससे जो है वो सारा चेंज करना पड़ेगा। तो यदि चेंज नहीं करेंगे तो उनको यहीं होशंगाबाद डालने आना पड़ेगा। और यदि आप किसी अदर जगह पर भी रह रहे हो और आपका यदि यहाँ पर आ रहा है तो आपको यहीं वोट डालना पड़ेगा। हम हर कहीं वोट नहीं डाल सकते हैं, मतलब जहाँ पर हमारा नाम आता है वहीं पर हमें वोट डालने के लिए जाना पड़ता है। और वोट डालने का अधिकार तो सभी को है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम।
जो लिस्ट जारी की जाती है जिसमें मतलब उन सभी को ये भी देखा जाता है कि कितने लोग हैं, उन लोगों में सभी लोग जीवित तो हैं, कोई मृत्यु तो नहीं हुई है इनकी। नहीं तो कई बार क्या होता है, जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है, लोग उनको भी जीवित करके और फर्जीवाड़े के साथ में वोट डलवा देते हैं अपने वोट बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार की जो कारस्तानी है वो करते ही रहते हैं। तो मतलब इसके लिए पहले ही वो वोटर लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है, तो उसमें ये सब देखा जाता है कि कौन कहाँ का है, कोई छूटा तो नहीं है, या फिर वो वोटर लिस्ट में नाम भी ऐड कराए जाते हैं जिन लोगों के नाम नहीं होते। जैसे मान लो कि जो 18 साल की नहीं हुए थे पहले, पिछले साल जो 18 साल के नहीं थे, वो इस साल यदि हो गए होंगे तो उनके नाम भी इसमें ऐड करना पड़ता है। तो ये सब प्रक्रिया जो है वो पहले से तय कर दी जाती है कि और बूथ बना दिए जाते हैं, यहाँ पर इलेक्शन होंगे, और ये भी तय कर दिया जाता है कि इसके रिगार्डिंग अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं, बीएलओ की ड्यूटी लगा दी जाती है। इसी ने फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।